दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में बोलना था, संविधान पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखनी थी, लेकिन उससे पहले ही अचानक एलओपी यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने इस पूरी की पूरी सरकार ही नहीं, बीजेपी को अंदर तक झकझोर दिया। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद न केवल बीजेपी, न केवल नरेंद्र मोदी, बल्कि राजनाथ सिंह को भी आईना दिखा दिया। हुआ ये दोस्तों कि कल जब लोकसभा के अंदर संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह खड़े हुए। राजनाथ सिंह ने बहुत से लोगों को संविधान बनाने को लेकर, संविधान के प्रारूप जो तैयार होकर आया, जिसको आपने और हमने, हम सब नागरिकों ने स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन राजनाथ सिंह ने यहां पर वीर सावरकर का भी जिक्र किया। जी हां दोस्तों, जब राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर का जिक्र किया तो बहुत से बुद्धिजीवियों की त्योरियां चढ़ गई कि वो वीर सावरकर जिन्होंने खुलकर अपने दौर में संविधान का विरोध किया था, आखिर वीर सावरकर को संविधान का श्रेय देकर राजनाथ सिंह कहना क्या चाह रहे हैं? ये सरकार क्या बौद्धिक तौर पर लोगों की विचारधारा इस लेवल पर परिवर्तित करना चाहती है कि खुलेआम संसद में झूठ बोल रही है? लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बात संसद में कल बोली थी, सबूत पेश करके, जी हां, सबूत पेश करके राहुल गांधी ने संसद में उसकी धज्जी उड़ा दी। कैसे, मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, वीर सावरकर ने संविधान को लेकर जो बात बोली उसका रेफरेंस देकर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वीर सावरकर संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को ऊंचा मानते थे और ये मानते हैं कि जो संविधान अपनाया गया, जब संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान अपनाया गया, तो वीर सावरकर का यह कहना था कि ये जो संविधान अपनाया गया है भारत द्वारा, इसमें भारतीय जैसा कुछ नहीं है। वो रेफरेंस राहुल गांधी ने दिया और सीधा केंद्र की मोदी सरकार से पूछ लिया, या फिर ये कह ले कि बीजेपी से पूछ लिया, राजनाथ सिंह से पूछ लिया, नरेंद्र मोदी से पूछ लिया कि आप जिसको श्रेय दे रहे हैं वीर सावरकर को, वो तो कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जैसा कुछ है ही नहीं। तो या आप ये कह रहे हैं कि आप जिनको अपना हीरो मानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं संसद में? सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। When we look at the constitution and we open the constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated
in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी चलती रही। जैसा कि अमूमन होता है, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी की जाती है, हंसा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे और लगातार संक्षिप्त में ही सही 20-25-26 मिनट का उनका भाषण था, लेकिन ब्रीफ में सही मजबूती से अपनी बात रखी। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो।